Well, I'm happy to be with all of you this nighttime in India. आज शाम के समय में भारत में जो है आप लोग के साथ आज आज परमेश्वर का वचन से बोलने के लिए प्रभु ने सहायता की, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। I want to just praise God for all the pastors and the leaders and the church, the sisters and the brothers and the children. I want to just bless you. और कलीसिया के जो है पास्टर्स और लीडर्स और कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष करता हूँ। I have a small message for you tonight. शाम के लिए एक संदेश जो है मेरे पास परमेश्वर ने जो दिया। So, if you have your Bibles, can you open and turn to the book of Proverbs, chapter 20, verse 5, and I will read it. और अगर आपके पास वचन है, बाइबल है, तो आप लोग नीति वचन को खोलिए और उसका 20 अध्याय। Proverbs 20 verses 5. उसका पांचवा पद या नीति वचन 20 अध्याय और उसका 5वां पद। Okay, I will read it and then the pastor will read that in your language. The purpose of a person's heart are like deep waters, but one who has insight draws them out. 5वां पद पढ़ेंगे। मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है, तो भी समझने वाला मनुष्य उसको निकाल लेते। I want you to memorize that scripture if you can. मैंने चाहता हूं कि आप लोग जो है इस पद को याद करें, अगर आप लोग को हो जाएगा तो। You know, human beings, we all have desires. All of us have longings and interest. इंसान को, हर एक इंसान का जीवन में महत्वाकांक्षाएं होते हैं और अभिलाषाएं होते हैं। We want to live a life where there's meaning to my life. We want to make sure that there's value to my life, and we want to make sure that I make a difference in my life. और हम लोग चाहता है कि प्रत्येक जन चाहता है कि हमारा जीवन अर्थपूर्ण हो जाए और हमारा जीवन विभिन्न हो जाए और हमारा जीवन में हम लोग कुछ खास, कुछ करने वाला व्यक्ति बने। But those purposes or desires that you have in your heart, how do we bring it outside? और हमारा हृदय के अंदर में जो इच्छाएं जो होते हैं, उसको कैसे हम लोग बाहर निकाल सकता है? In this verse, there's an image that is in the verse, and it's the image of a well and water all the way at the bottom. और यहाँ पे एक दृष्टांत जो है बताया गया है कि एक अदाह कुंड का, मतलब एक कुआं का जो है दृष्टांत यहाँ पे बताया गया है, जिसी में ऊपर भी और नीचे भी जो है पानी रहते। So King Solomon, who is a very wise king, he says, sometimes to bring what is in our heart, in order for that to come outside, it's going to take a lot of hard work. और सुलेमान राजा जो है बहुत बुद्धिशाली राजा है, और उन्होंने जो है बता रहा है हमारा हृदय जो है बहुत गहरा है, और उसी से बाहर जो है चीजों निकालने के लिए जो है हमें बहुत समय लगता है। And he says the imagery is there's water beneath the earth, and the question is, how will you bring the water outside? और यहाँ पे जो है सवाल ये आता है, excuse me, यहाँ पे सवाल जो आते हैं कि ये जो है पानी जो है बहुत नीचे गहराई में है, और उस गहराई वाला पानी को कैसे हम लोग बाहर निकाल सकता है? Now, this is a time when people used well system to get water. There's no pipe, there's no plumbing. So this is a time that people, if you wanted water, you have to dig to the bottom and get the water out. So that's the time. और ये जो है चापाकल का युग नहीं है और नल का युग नहीं है। पानी जो है बाहर आने के लिए कुआं में जो है कोई बाल्टी या और कुछ जो है डाल के पानी निकालना पड़ते है।
You have to remember that somebody who lived 2,000 or 3,000 years ago, a well was a commodity, was precious. और अब 2000 साल पहले जो है रहने वाला कुछ लोगों के लिए एक कुआं खोदना या एक कुआं का जो है मालिक बनना वो एक कीमत वाला चीज है. Water was needed for their food, needed for their animals. Water was needed for their farming. So water was very important. पानी जो है बहुत बहुमूल्य था क्योंकि पानी उन लोगों को व्यक्तिगत जरूरत के लिए चाहिए, उन लोगों का जो है जानवरों के लिए चाहिए, उन लोगों का खेत के लिए चाहिए, अलग अलग चीजों के लिए पानी बहुत जरूरत था. But Solomon here says there's a land over there and there's water underneath the land, but you have to go and get that water out. और सुलेमान बोल रहा है एक जमीन है, जमीन का नीचे जो है पानी पाए जाते हैं, लेकिन आपको जाके पानी निकालना पड़ते हैं. So what is Solomon trying to tell us through this verse? और इस वचन के द्वारा सुलेमान हमसे क्या बोलना चाहते हैं? Solomon is telling us that it takes hard work. सुलेमान हमसे ये कहते हैं कि पानी निकालना जो है एक कठिन प्रयत्न है. He's telling us that it's going to take some time. और उन्होंने ये भी हमसे बता रहा है समय लगने वाला एक काम है पानी निकालना. And he's saying that you will need to have certain tools to get the water out. और ये भी वो बता रहा है कि अगर वो पानी निकालने के लिए आपके पास कुछ तरह का हथियार होने का जरूरत है. He is also telling you that what you need is right there. The water you're looking for is right where you are, but it's not going to be easy for it to come out. तो उन्होंने कहने का मतलब है आप जो खोजने वाला पानी जमीन का नीचे है, लेकिन पानी निकालना जो है आसान बात नहीं है. You don't have to go looking for water over there or in that direction or in that place. He says the water is there in your heart, but you need to bring it out. So it's not easy. It takes some time, some work, and you need some tools to bring it out. और उन्होंने कहने का मतलब है कि पानी के लिए आप इधर उधर जाने का दौड़ने का जरूरत नहीं है. जो चीज आप खोज रहा है आपका हृदय के अंदर में है, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए कुछ माने औजार का जरूरत है, कुछ मेहनत का जरूरत है. So my question to you today is, are you willing to do the work so that your desires that God has given you, so that it will come out? तो मैंने जो है आज आपसे पूछना चाहते हैं, आप जो है प्रभु का इच्छा के आधार पर जो है आपका हृदय के अंदर का जो है इच्छाओं को बाहर निकालना चाहता है कि नहीं? Or are you going to look for the easy waters? या हम लोग मेहनत करके इसको बाहर निकालना चाहते हैं, या आसान तरीका में जो है काम करके कुछ भी निकलने के लिए चाहते हैं? Most people today, they want everything fast and they want everything so quickly. और आज के जमाने में लोग जो है बहुत जल्दी ही सारा कुछ होने के लिए चाहते हैं और तुरंत मिलना भी चाहते हैं. God has given you everything you need for your blessing, for God's purposes to be fulfilled in your life, but you need to bring that out. और परमेश्वर जो है आपके आत्मिक जीवन के लिए जो जरूरत है वो सारा चीज आपको देख चुके हैं, लेकिन ये आपका जो है काम है उसको आपने बाहर निकालना. Remember when Jesus was speaking one day, he said, if you believe in me, out of your heart will flow rivers of water out of you. आमीन. यीशु मसीह जो है प्रचार करने के वक्त में बोला कि अगर आप विश्वास करेगा तो आपके अंदर से जीवन जल की नदी बह निकलेंगे. And the second part of that verse says, one who has wisdom will draw the water out. और इस जो है पद हम लोग जो पढ़ा है उसका दूसरा भाग बता रहा है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है.
So that means the one who wants to get the water out, he has to have a plan. He has to have a strategy. He has to have a step-by-step way of getting this out. और इसका कहने का मतलब है जो निकालना चाहते हैं पानी, उसके हृदय के अंदर में एक रणनीति होते हैं, एक तरीका होते हैं, एक कदम कदम करके ही उनको पानी निकाल सकता है. So you have to be able to see how things are connected if you want to get to the bottom and bring the water out. How everything is connected. What is the step by step? How will I get to the bottom to get the water out? तो इसलिए मेहनत करके जो है हमारे हृदय के अंदर में एक योजना बनाना पड़ता है. ये पानी जो है बाहर निकालने के लिए मुझे कैसे कैसे निकालना पड़ता है और उसके लिए क्या क्या तरीका मुझे जो है अपनाना पड़ता है. You know, in our lives, God has put a lot of things in our lives, and there's purposes behind everything that God makes us go through in our lives. और हमारा जीवन में अलग अलग समय में परमेश्वर अलग अलग तरीका में हमें लेके जाते हैं और सारा जो है तरीका के लिए हमेशा जो है परमेश्वर के एक योजना भी जो है होते रहते हैं. Everything that we go through, every relationship that we have, every experience that we have, every opportunity that we have, behind all of this, God has a purpose. और हमारा जीवन में मिलने वाला अलग अलग योजनाओं को, हमारा जीवन में मिलने वाला अलग अलग अपॉर्चुनिटी को, हमारा जीवन में होने वाला अलग अलग अनुभवों को, सारा चीज के पीछे प्रभु को एक महत्वपूर्ण योजना होते हैं. And we need God's understanding to know how they are connected with each other. लेकिन हमारा जीवन में होने वाला अनुभव परमेश्वर ने दिया है, उसको समझने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह हमें चाहिए ताकि हम दोनों को जोड़ के देख सकता है. So understand that being a blessing, doing God's will, doing anything that is godly, it's not easy. It's a lot of hard work. तो इसलिए परमेश्वर का इच्छा को करना, परमेश्वर आप हमारा मन का इच्छा को पूरी करना, प्रभु जो चाहता है उसको पूरा करना, ये सब जो है आसान बात नहीं है. उसके लिए बहुत मेहनत का जरूरत है. You know, Paul in 1 Corinthians chapter 15 verse 10, Paul tells how ministry is very hard and difficult. और 15 अध्याय में पढ़ते पौलुस कहते हैं कि सेवकाई जो है कितना कठिन है करने के लिए. A lot of people think ministry is very easy. बहुत लोग सोचते हैं कि मिनिस्ट्री या सेवकाई जो है आसान है. No, it's not. Paul says, by the grace of God, I am what I am, and his grace towards me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. और यहाँ पे जो है पौलुस जो है उसका 15 का 10 में कहते हैं, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से है. उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था. So Paul is saying that very hard. He labored like a day laborer. He was working hard for the kingdom of God. तो पौलुस कहने का मतलब है मैंने जो है एक मजदूर का जैसा प्रतिदिन में कमाने वाले के जैसा बहुत कठिन प्रयत्न किया है प्रभु के राज्य के लिए. So we need to understand, as a child of God, everything is not going to be easy. God has put these things in place, and we have to do some work for that thing to come to be in our lives. तो इसलिए परमेश्वर सब कुछ हमारा जीवन के लिए रखा हुआ है, लेकिन ये हम लोग को हासिल करने के लिए उसके पीछे एक मेहनत का काम होते हैं, कुछ कार्य करने का जरूरत होते हैं. A good education is hard work. एक अच्छा पढ़ाई मिलना वो जो है मेहनत का कार्य है. Good family is hard work. एक अच्छा परिवार को संभाल के जाना एक मेहनत का कार्य है.
good testimony is a hard work. अच्छा गवाही होना मेहनत वाला बात है. And so we need to understand that it takes some work from our side, but the grace of God is with us and he will give us the power to do what we need to do. तो हम लोग हमारे तरफ से देखेंगे तो ये सारा काम मेहनत वाला काम है, लेकिन प्रभु के तरफ से प्रभु अपना अनुग्रह हमारा जीवन में देते हैं इसको पूरा करने के लिए. हालेलुया. And so I want to tell you one thing that we need to watch out for so that we can do the thing that we need to do to be blessed. तो इसलिए हम लोग जागते रहना चाहिए कि क्या करना है ताकि परमेश्वर जो हमारा जीवन में चाहते हैं उसको हम लोग पूरा करके प्रभु की आशीषों को हासिल करें. And it is called the awareness of time. Time is important for us. तो ये जो है उसमें एक और बात हमें समझना है कि समय का कीमत, क्योंकि समय जो है हम सबके लिए बहुमूल्य होते हैं. Timing is something that is very important in the Bible. Timing is very important to God. समय जो है परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है और हम सबके लिए बहुमूल्य होना चाहिए. And in the book of Ephesians, chapter 5:16, Paul says like this, redeeming the time because the days are evil. तो इसलिए एफेसियों का पत्र 5:16 में पौलुस इस प्रकार कहते हैं, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं. So to everything there is a season and there is a time, the Bible says. तो बाइबल वो भी ये भी कहते हैं हर एक चीज के लिए एक मौसम होते हैं, एक काल होते हैं. And so it says that we need to redeem our time. Redeeming, the word redeem is a word that is used in the marketplace. और हम लोग जो है समय को बहुमूल्य समझना, उसको जो है निकालने के लिए कोशिश करना, रिडीम करना या निकाल देना एक व्यापार से संबंधित एक शब्द होते हैं. Redeeming means that you are paying money and then you're purchasing something back. रिडीम करने का मतलब है आप जो है बहुमूल्य समझने का मतलब आप कुछ कीमत वाला देते हैं और देके और कुछ कीमत वाला आप वापस लेते हैं. And so which means that something that you had, something that is lost, but you're purchasing it back with money. और इसका कहने का मतलब है कुछ आपको खो गया और आपने जो है पैसा या रुपया देके उसको वापस खरीद रहा. And so what Bible is teaching us is that we have to be wise so that we do not lose opportunities. तो इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है हमें कहते हैं कि हम लोग जो है समझदार या हम लोग बुद्धिशाली होना और अवसर को हम बहुमूल्य समझना चाहिए. We have to pay a price to get the timing or the opportunity back. क्योंकि अगर समय हम लोग खो दिया है, अवसर हम खो दिया है, उसको वापस मिलने के लिए हमें बहुत कीमत चुकाना पड़ता है. In our life, it can be possible that we let opportunities just slip away. और हमारा जीवन में इस प्रकार का संभावना है कि कभी-कभी अलग-अलग अवसर हमारे हाथ से जो है निकल जाते हैं. So there in the Bible, there's something called harvest time, preparing time, seed time, all these different timings. और बाइबल में जो है अलग-अलग समय के बारे में बताते हैं, फसल काटने का समय और बीज बोने का समय और खोदने का समय. And so we have to, Paul says, redeem our time, buy it back. We cannot lose any more time. तो इसलिए पौलुस बोल रहा है अवसर को हम बहुमूल्य समझना क्योंकि समय हमारे लिए बहुत कीमत वाला. And in the verse right above that, Paul is saying that people are sleeping, and he says, if you are sleeping, he says, awake from your sleep, awake from your sleep. और उसके पहले वाला पद में 14 पद में जो है पौलुस लोगों को बोल रहा है, हे सोने वालों जागो. And it says that, when somebody is sleeping, the only way they can wake up is somebody from outside has to wake them up, touch them. Otherwise, they cannot wake up.
और जो है कहने का मतलब यह है कि अगर कोई सो रहा है, उसको जगाने के लिए बाहर से कोई व्यक्ति आके उसके शरीर को स्पर्श करना है या उसको हल्का से मारना चाहिए, तभी वो जागते हैं। And so we need an outside force to come and awaken us up. तो एक बाहर से एक शक्ति आना चाहिए, वो शक्ति आएगा तभी हमारा जीवन में जागृति होते हैं। And that is the Holy Spirit. He can awaken you. वही जो है पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा को ही हमें जो है जगा सकता है। आमीन। If you're asleep in one area of your life, you need to ask the Holy Spirit to come and awaken me. अगर आपका जीवन का कोई भी इलाका में आप सो रहा है, नींद में पड़ा है, तो पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा आके मुझे जगाइए। In which area do you not have the tools that you need to dig so that your well comes out? You need to ask the Holy Spirit to empower you so you can work. तो अब पवित्र आत्मा से मांगना चाहिए, पवित्र आत्मा किस इलाका में मुझे और जागने का जरूरत है, ताकि पवित्र आत्मा और आपको मिलके उस इलाका में कार्य करने पाए। If you don't have a strategy, if you don't have a plan on how to do something that you want to do for God, you need to ask the Holy Spirit to give you a strategy. अगर आपको जो है कोई तरीका नहीं है, एक रणनीति नहीं है, क्या करना है एक विषयों के बारे में, आप पवित्र आत्मा से मांगना चाहिए, पवित्र आत्मा मुझे समझ दो और मुझे समझा दो कि कैसे जो है फलना विषयों में कार्य करना या प्रभु का सेवकाई में कार्य करना। Remember our key verse, it says that the one with wisdom will draw the water out. तो देखिए हमारा जो है मूल पद को आप ध्यान करना कि जो समझने वाला मनुष्य उनको निकालना है, वो निकाल देते हैं। So which means that sometimes we will have to find somebody else who has the wisdom to help us to draw this outside. तो इसका कहने का मतलब है समझ वाला एक व्यक्ति का जरूरत वहां पे हमें नजर आते हैं, जिनका मदद से ही हमें जो है जो अंदर में है उसको बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। Do you know how to draw something out of somebody else? आपको मालूम है कि कैसे जो है और आप बाहर निकाल सकता है? Do you know how to find people with wisdom to help you draw this out? आपको मालूम है कि लोग जो है समझदार है, जिनके अंदर में बुद्धि है, वे लोग मदद कर सकता है उसको बाहर निकालने के लिए। So we need to ask the Holy Spirit, I need wisdom to draw this water out. तो इसलिए पवित्र आत्मा से कहना है, पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, ये चीजों को या जो अंदर में है उसको बाहर निकालने के लिए। Notice that the water is below the ground. You don't have to go looking for it. It's right there. Everything that we need to be a blessing, God has given us, but it needs to be released out of our lives. और आप पानी को या पानी जैसा जो है चीजों को खोजने के लिए आप कहीं जाने का जरूरत नहीं है, आपके अंदर में ही प्रभु ने दिया हुआ है, उसको आप बाहर निकालने के लिए पवित्र आत्मा का जरूरत है, परमेश्वर से मांगने का जरूरत है। I believe the blessing that God has for your house is inside the children and the people inside your house. और आपका जीवन के लिए जो परमेश्वर की आशीष जो है आपका बच्चे के ऊपर में और जो लोग आपके परिवार के अंदर में है उन लोग के ऊपर में प्रभु ने दिया हुआ। When you look at them, maybe you don't see anything on the outside special. आप जो है उन लोगों को देखने से हो सकता है बाहर में कुछ नजर नहीं आता होगा। Oh, but God has placed His precious water inside them. You just need to have the wisdom to draw that out. लेकिन उन लोग के अंदर में परमेश्वर बहुत कीमत वाला पानी, कीमत वाला चीज़ें जो है रखा हुआ है, आपको समझ होने का जरूरत है उसको बाहर निकालने के लिए। Today they may not look like anything special, but soon what the special that's on the inside will come on the outside. हो सकता है आपका बच्चे के जीवन में आपने जो है आज कुछ विशेष नहीं दिखता होगा, लेकिन आप जो है समझ के साथ उसको मदद करें तो वो जो समय आएगा तो वो बाहर निकल पाएगा।
No, we live in a time when people quit everything so easily and so fast. और हम लोग ऐसे जमाने में रहते हैं, लोग जो है तुरंत छोड़ देते हैं, कोई भी जो है काम जो है या कोई भी चीज तुरंत छोड़ने वाले के समय में रहते हैं। They try, and if there's any problem, they are so fast to quit. और वे लोग जो है कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही जो है वे लोग मेहनत करके छोड़ देते हैं। Oh, but that's not the kind of people that God is looking for. लेकिन परमेश्वर जो है देखने वाला लोग, परमेश्वर चाहने वाला लोग उसी प्रकार का लोग नहीं होना चाहिए। When we look at our God in the beginning, what we see is a God that was working. और शुरू में हम लोग जो है प्रभु के बारे में जो पढ़ते हैं, वो प्रभु जो है शुरू से ही काम करने वाला, मेहनत करने वाला एक प्रभु है। Notice, do you remember in the book of Genesis, in the beginning, God creates, then God is doing, God is creating everything, God working when we first see him. तो आप जो है उत्पत्ति पहला किताब में पढ़ते हैं, वहां पे प्रभु मेहनत कर रहा है और प्रभु अलग अलग चीज बनाने के लिए, सृष्टि का कर्म करने के लिए मेहनत कर रहा है। And when we see Jesus in the New Testament, he says that my Father is still working and I am still working. So we see the Father and the Son and the Holy Spirit, they're still working. और अब नया नियम में यीशु मसीह कह रहा है, मेरा पिता काम कर रहा है, इसलिए मैं भी काम करता हूं। पिता, परमेश्वर और पवित्र आत्मा तीनों हमेशा काम में लगा हुआ है। And we should also be working for the glory of God in our lives. तो इसलिए हम लोग भी परमेश्वर का महिमा के लिए कार्य करना चाहिए। We tend to give up sometimes. हम लोग कभी-कभी जो है छोड़ने वाला एक इच्छा में हम लोग आ जाते हैं। Sometimes we think the other people are blessed, I'm not blessed. और कभी-कभी हम लोग सोचते हैं कि दूसरा लोग जो है आशीष पाया, हमने आशीष नहीं पाया। There, you know, the other children are blessed, the other people are blessed, but there's nothing from me. But that's not true. The water is in your heart also, but it is deep down. और उन लोग का बच्चा आशीष पाया, मेरा बच्चा आशीष नहीं पाया। देखिए, बात ऐसा नहीं है कि आशीष का चीज जो है हमारे अंदर में है, वो जो है और कहीं बाहर में नहीं है, उसको निकालना पड़ते। Amen. So the first point is that we have to be aware of the time of our lives. तो इसलिए सबसे पहला बात, हम लोग हमारा समय के बारे में याद होना चाहिए, बहुमूल्य समझना चाहिए। And the second point, I'll go quickly, that we need to be aware of God's presence in our lives. और दूसरा बात, हम लोग प्रभु का उपस्थिति के बारे में जो है, उपस्थिति को बहुमूल्य समझना। Without God's presence, without encountering God's presence, we won't have the direction or the power to go forward. अगर परमेश्वर का जो है उपस्थिति हमारा जीवन में नहीं है, तो हम लोग को आगे बढ़ने का ताकत हमें नहीं मिलेगी। You remember the story of Jacob when he was running from his house and he was going to Haran. और आपने जो है याकूब का कहानी हो सकता है याद होगा, उन्होंने अपना घर छोड़ के अपना जो है मामा का घर की ओर से भाग रहा है। And he's running, and then he comes to a place, and there he sleeps, and he sees a big dream. He sees the ladder going up, and the angels coming up and down, and God talks to him. और एक जगह में जाके उन्होंने जब सोने लगा, वहां पे उन्होंने एक बड़ा सीढ़ी का स्वप्न देख रहा है, जिस सीढ़ी में स्वर्गदूत उतर रहा है और चढ़ रहा है, और वहां पे परमेश्वर का उपस्थिति उन्होंने अनुभव किया। And then he jumps up out of his sleep and he says, "Oh, surely the Lord was in this place." और उन्होंने तुरंत जो है जाग गया और बोला कि ओ सचमुच प्रभु हमारा बीच में है। And that is the first time Jacob is having an encounter with God, Israel. और यही जो है याकूब का जीवन का सबसे पहला जो है अवस्था था, जिसमें याकूब परमेश्वर के साथ एक मुलाकात हुआ। And that made a big difference in the life of Jacob. और वो बात जो है याकूब में बहुत फर्क को लाया। And that's what we need also in our lives, an encounter with God in our lives.
और यही जो है हमारा जीवन से भी प्रभु चाहता है कि प्रभु के साथ एक And मुलाकात। in that encounter, God tells him, and God gives him a plan. God tells him, I'm going to bless you. When you go, I will bless you, and I will bring you back into this land. और जो है मुलाकात में प्रभु जो है अपना तरीका, अपना रीति हमको बताएंगे। याकूब से बताया, मैंने तुम्हें आशीष करने वाला है और मैंने तुम्हें इस देश में वापस लेते And आएंगे। notice that you can experience or encounter the presence of God any place in your life. आपको समझना चाहिए परमेश्वर का उपस्थिति जीवन का कोई भी इलाका में, जीवन का कई भी क्षेत्रों में आपको जो है अनुभव करता। Jacob, he was not having a prayer meeting. He was in the outside in the wilderness. He was sleeping, but he encountered the presence of God. याकूब जो है कलीसिया के अंदर में नहीं था, कोई प्रार्थना सभा में शामिल नहीं हो रहा था, बाहर में खुला जगह में सोने के वक्त में उन्होंने परमेश्वर का जो है उपस्थिति को अनुभव किया। And all the promises that God had for him only began to happen after he had this encounter with God's presence. और परमेश्वर के साथ जो है उपस्थिति होने के बाद ही उनका जीवन में जितना आशीष जो मिलना चाहिए था, वो आशीष सब जो है आने लगा। And I want to tell you, church, that's what we need today. We need a fresh encounter from God. We need a fresh encounter with the presence of God. तो यही जो है कलीसिया, मैंने आप लोगों से बताना चाहते हैं, हमारा जीवन में परमेश्वर के साथ एक ताजगी मुलाकात, एक ताजा मुलाकात होना बहुत जरूरी है। Amen. Let me go to my third and my final point. और मेरा तीसरा और आखिरी मुद्दा में मैंने जाना चाहता I हूँ। know it's 10 o'clock in India now. मुझे मालूम है कि इंडिया में 10 बज गया। The third point is that we need to have an awareness of the choices that we make in our lives. और हमें जो है समझना चाहिए कि हमारा जो है विकल्प को चुनने में हमें सावधान रहना। One, we need to know time. Second, we need to have an encounter with the presence of God. But then my personal responsibility, the choices that I make, they have big implications in my life. पहला मैंने जो है समय के बारे में बताया, दूसरा प्रभु का उपस्थिति परमेश्वर के साथ, दूसरा एक मुलाकात के बारे में, और तीसरा हमारा विकल्प हम जो चुनते हैं उसके आधार पर होगा कि हमारा जीवन को आगे कैसे बढ़ना। Good intention, good thinking is not enough. We need to have good choices to make a difference. एक अच्छा सोच होना काफी नहीं है, एक अच्छा चुनाव हमें करना चाहिए, वो हमारा जीवन में मदद करेगा। Amen. So when we do something, that has an impact, not just on me, but on my entire family and my life. और एक अच्छा चुनाव हम करेगा, केवल वो हमारा जीवन के लिए नहीं, हमारा पारिवारिक जीवन के लिए भी आशीष चीज होते हैं। Some people say, I will start doing something, I'll do it later, I will do it tomorrow, I will do it next week. और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ काम है तो मैंने कल करेंगे, अगला सप्ताह करेंगे, अगला माह करेंगे। That's not the way. That's not a good choice. We need to, when we make a choice, we have to follow through and we have to do what we will do. और हमें जो है हमारा चुनाव वैसे नहीं होना चाहिए। अगर एक चुनाव हम लोग करेंगे, वो चुनाव और उसको पूरा करने के लिए हमें पूरा प्रयत्न करने की जरूरत है। So if a person's time to study is when they're young, that's the right time to study. Make the choice to study good. और एक व्यक्ति को पढ़ाई करने का समय है उसका जवानी का समय में, उस वक्त में जो है पढ़ाई के लिए हम इस्तेमाल करना, वही जो है चुनाव हमें करना चाहिए। There's time to study the word of God. When there's time to pray, that is the time. You have to make the choice to do it at that time. और परमेश्वर का वचन पढ़ने के एक समय आते हैं, उस वक्त में हमें परमेश्वर का वचन पढ़ने का एक चुनाव हमें करना चाहिए। So we have to be careful about the choices that we make in our lives.
और हमारा जीवन है, हम लोग जो लेने वाला चुनाव के बारे में हमें एक समझ होना चाहिए. So let me come back to the key verse. It said that the desires of a person is deep in their heart, like a deep well, but the one with wisdom will draw the water out. तो इसीलिए मैंने जो है मूल पद में वापस आना चाहता हूँ. नीति वचन 20 का जो है 5 में, मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता. So are you just living with the deep waters in your heart every day, every year? Is that all you're doing? और आप जो है आप पूरे साल तक आपका हृदय के अंदर में पूरा पानी से जो है भरा हो एक जीवन आप जी रहा है. Why don't you begin to draw that out? क्यों आप उसको बाहर नहीं निकाल पा रहा? Draw out a good family life. एक अच्छा पारिवारिक जीवन बाहर निकालना. Draw out a very good spiritual life. एक अच्छा आत्मिक जीवन को बाहर निकालना. Draw out a blessed life. एक आशीष वाला जिंदगी को बाहर निकालना. And you need wisdom. The one with wisdom will draw this out. और ये सब करने के लिए हमें समझ का जरूरत है. समझ वाला व्यक्ति इसको बाहर निकाल देते हैं. हालेलुया. In the Bible, there's no shortcuts. परमेश्वर के वचन में कोई शॉर्टकट नहीं है. God expects us to do something, but then God will put his presence and his power, and he will give you the strength to do this hard work. और परमेश्वर पर शरण लेके परमेश्वर हमें उसके लिए ताकत देंगे, उसके लिए शक्ति देंगे, जो कार्य हम करना चाहता है उसको करने के लिए. So protect your time. Be careful with the time that God has given you. इसलिए आप अपना समय को बहुमूल्य समझना. प्रभु ने जो दिया हुआ समय को आपने संभाल कर रखना. You know, with telephones and social media, people waste a lot of time. तो आपको समझना चाहिए सोशल मीडिया और टेलीफोन में लोग जो है बहुत समय जो है बर्बाद कर देते. The Bible teaches us to redeem your time. बाइबल हमें बताते हैं समय को बहुमूल्य समझना. Have and wait for an encounter from God, God's presence. और परमेश्वर का उपस्थिति के एक उपस्थिति हमारा जीवन में आने के लिए इंतजार करना, उसका बाट हम छोते रहना. And thirdly, be careful of the choices that we make. The choices will affect our children. It'll affect your family. It'll affect God's name and God's glory. और तीसरा, हमारा जीवन में सही चुनाव हम करना, जो चुनाव के द्वारा परमेश्वर के राज्य को हमारा परिवार में, हमारा बाल बच्चे के जीवन में आशीष होने पाए. May the Lord bless you and give you the strength to draw out the purposes, the desires that God has given you and your family. और परमेश्वर आपको आशीष करे कि आपका परिवार के लिए, आपका जिंदगी के लिए अच्छा बातों को बाहर निकालने के लिए प्रभु आपको सहायता करे. So I want to thank you, Pastor, for giving me this time, and may the Lord bless all of you. और पास्टर जी को समय देने के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं, और परमेश्वर आप सबों को आशीष करे. हालेलुया. Amen. Thank you, Pastor Robert Johnson, for Thank this you. wonderful message. Really God spoke to us. प्रभु आपको बहुत आयत आशीष करे, और हम लोग प्रार्थना में हम जाए. हालेलुया. हमारा जीवन को हम लोग समर्पण करें. आज जो है परमेश्वर के दास के